Good morning, everyone. So, as I told you, some topics of this chapter have been deleted for this year only. And out of the deleted portion, one of the portion is nomenclature of carbon compound. This one is a deleted portion. Next portion is also deleted. Same, deleted, deleted. Chemical properties of carbon compounds. This one portion is also deleted. These are deleted reactions. Now this one is the topic that is in your course. Some important carbon compounds. So there are two important carbon compounds are in your course. One is ethanol and the another is ethanoic acid. This is the common general formula, chemical formula, chemical formula of ethanol. It is known as ethyl alcohol. Now why it is known as ethyl alcohol? It is a topic that I think you have to skip because आपको नेमिंग में सिखाया जाना था और नेमिंग आपके पास नहीं है तो आपसे कोई नाम पूछेगा नहीं कि क्यों हुआ है. So you have to learn it. Now it contains some properties. Even properties are deleted, but these are only physical properties that are deleted, but the chemical reactions you have to learn. So I'm going to discuss the complete property. Ethanol. Ethanol is a colorless liquid like water with a pleasant smell and burning taste. एक different smell आती है ethanol में से और एक burning taste होता है जब हम उसको चखते हैं, जब हम उसको taste करते हैं तो एक burning taste हमें आता है. It is soluble in water in all proportion. It is completely soluble in water. Ethanol react with sodium to form sodium ethoxide and hydrogen. देखिए, this one is metal and this one is ethanol. So what happened? Basically, sodium replaced hydrogen from the ethanol because sodium is more reactive than hydrogen. So what happened? C2H5ONA. देखिए hydrogen replace हुआ and this hydrogen which is replaced, it can come out in the form of gas. This is known as sodium ethoxide. Ethanol reacts with hot concentrated sulfuric acid to form ethene and water. Concentrated sulfuric acid is a dehydrating agent and removes water from ethanol. देखिए क्या होगा when this one is ethanol. इथेनॉल कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट करता है. यहाँ पे प्लस नहीं किया, उसको ऊपर लिख दिया बिकॉज इट इज नॉट गोइंग टू इन्वॉल्व इनटू द रिएक्शन. तो जो चीज इन्वॉल्व नहीं होती सिर्फ एक इफेक्ट डाल सकती है उसको एरो के ऊपर लिख देते हैं. So as I told you, it is a dehydrating agent. What is the meaning of dehydration? Dehydration means loss of water. So H2SO4 gives a loss of water to this molecule. तो जब वाटर निकल जाएगा, सोचिए एक हाइड्रोजन ये निकला, H2O निकलना है, एक ऑक्सीजन ये निकल गया और एक हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा तो ये क्या बचेगा? C2H4 बचेगा. So C2H4 and H2O. अगर आप C2H4 का स्ट्रक्चर बनाओ तो आपको बेटे कार्बन के बीच में दो बॉन्ड लगाने पड़ेंगे. Because as I have discussed with you that every carbon has to contain 4 bonds. If these 4 bonds are not completed by the hydrogen which is going to be added with the carbon, then carbon-carbon bonding will increase. अब देखिए यहाँ 2 carbon है. For example, let's discuss it. For example, there is 1 carbon, then there is another carbon. अब भैया एक बॉन्ड तो जरूरी है तो ये लगा दिया एक बॉन्ड. Now 4 hydrogen we have to attach. So 4 hydrogen, 1, 2, 3 and 4. तो जी जो हाइड्रोजन यहाँ लगा था, हाइड्रोजन तो सेटिस्फाई हो गया, उसने एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर ली कार्बन के साथ, उसकी आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट. बट व्हाट अबाउट कार्बन? कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन अपने थे और 4 कहीं बाहर से चाहिए थे. सो व्हाट हैपेंड इन दैट? अब उसने एक यहाँ से लिया, एक इधर हाइड्रोजन से लिया, एक इस कार्बन से लिया, तो अभी तो 3 ही आए उसके पास. तो वो आपस में ही 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करते हैं और हम यहाँ लगाएंगे डबल बॉन्ड. तो डबल बॉन्ड फिर लगाना पड़ेगा क्योंकि कार्बन के आसपास, आप सिंपल लैंग्वेज में समझ लीजिए, ये 4 लाइनें होनी जरूरी हैं. 1, 2, पहले 3 थी तो 4 लाइन कहाँ लगाएं? अब यहाँ भी नहीं छोड़ सकते, हाइड्रोजन बढ़ा नहीं सकते,
तो भैया कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आया। एंड अब ये डबल बॉन्ड वाले क्या होते हैं? अनसैचुरेटेड मीन्स एल्कीन। डबल बॉन्ड वाले हमने डिस्कस किए थे प्रीवियस सेशन में, दोज आर एल्कीन्स, तो इसीलिए इसका नाम इथीन है। नेमिंग अगर मैं फिर दोबारा से कहूंगी कि नेमिंग आपके कोर्स में नहीं है, तो मैं आपको ये नहीं एक्सप्लेन करूंगी कि ये इथीन ही क्यों है। नाउ द uses, even it is not in your course, but I think there is no harm to read it only. Ethanol is used for making alcoholic drinks, जो ये बियर और जितनी भी अल्कोहलिक ड्रिंक्स बनती हैं, इट इज यूज्ड एज अ सॉल्वेंट, मिक्स करने के लिए काम में आता है। इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग मेडिसिन लाइक टिंक्चर आयोडीन। यू हैव डिस्कस्ड इट इन योर 9th क्लास सॉल्यूशन चैप्टर जब हमने पढ़े थे, कफ सिरप एंड टॉनिक्स। सो दिस वन इज इथेनॉल। Another compound is ethanoic acid. Ethanoic acid, this is the formula, and commonly it is known as acidic acid. इसको commonly vinegar भी बोलते हैं, vinegar, सिरका। Ethanoic acid is a colorless liquid and a pungent smell and sour taste. अब sour taste तो इसका इसलिए है क्योंकि ये acid है. It is soluble in water. A solution of 5% to 8% ethanoic acid in water is called vinegar. सोचिए vinegar हमें कितना खट्टा लगता है, और सिर्फ उसमें इथेनोइक एसिड 5 to 8% है, तो एक्चुअल में इथेनोइक एसिड कितना खट्टा होता होगा। इथेनोइक एसिड की रिएक्शन अगर आप इथेनॉल से करा दोगे इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, और क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड क्या करेगा, उसका वाटर मॉलिक्यूल निकाल देगा, अब किसी एक में से तो निकालेगा नहीं, तो वो क्या काम करता है, इधर से तो OH निकाल देगा और इसका H निकालेगा, तो फाइनली कंपाउंड बनेगा CH3CO, और अब ये वाला O ले लीजिए, O C2H5। तो अगर हम बात करें, अगेन आई वांट टू शो इट विद द हेल्प ऑफ पेन। ओके, सो ये वाला OH निकाल दिया और यहां से H रिमूव कर दिया गया। अब देखिए कंपाउंड CH3COO, ये इतना कंपाउंड, ये वाला, ये तो आया है इथेनोइक एसिड से। और इस कंपाउंड को थोड़ा सा मिरर इमेज करके देख लीजिए, मिरर में लेटरल इन्वर्जन होता है ना, तो आप O को देख लीजिए, देखिए OC2H5, ये आया है इथेनॉल से, तो सिर्फ वाटर निकला है और वाटर निकल के ये कंपाउंड बना। दिस कंपाउंड इज नोन एज एस्टर। एंड एस्टर क्या होता है, एक स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस होता है जो हमें मार्केट में भी मिलता है, हम आइसक्रीम खाते हैं उसमें जो स्मेल आती है वो एस्टर की वजह से है। परफ्यूम्स में एस्टर स्मेल प्रोवाइड करता है, तो एक फ्रेग्रेंस देता है एस्टर। सो दिस रिएक्शन, because in this reaction ester is formed, so this reaction is known as esterification. It is very important reaction. So the reaction between carboxylic acid, अब ये कार्बोक्सिलिक एसिड आप सोचेंगे क्या है, एक्चुअली ये फंक्शनल ग्रुप है, COOH जहां लग जाए वो कार्बोक्सिलिक एसिड, एंड अल्कोहल जहां ये लग जाता है, OH लग जाता है कार्बन कंपाउंड के साथ, टू फॉर्म एन एस्टर इज कॉल्ड एस्टरिफिकेशन। तो खैर आप कार्बोक्सिलिक एसिड अल्कोहल के चक्कर में ना पड़िए, इथेनोइक एसिड और इथेनॉल के बीच की रिएक्शन एस्टरिफिकेशन। इसी रिएक्शन को अब उल्टा कर दीजिए, अभी एसिड की प्रेजेंस में हुआ था, अब बेस की प्रेजेंस में कर दीजिए, तो देखिए क्या होगा। जैसे ही आप इस रिएक्शन में एस्टर लेंगे, ये एस्टर है ना जो यहाँ हमने बनाया था, उसकी रिएक्शन NaOH के साथ कराते हैं, तो अब ये NaOH टूट जाएगा, दिस इज नोन एज हाइड्रोलाइसिस, इसका हाइड्रोलाइसिस होगा। अब ये Na तो चला जाएगा इथेनोइक एसिड वाले H को रिप्लेस करने, और OH आ जाएगा इथेनॉल के साथ, तो देखिए CH3COO, H की जगह क्या आ गया, Na। तो ये वैसे इथेनोइक एसिड था, बट नाउ इट फॉर्म सोडियम इथेनोएट, और यहाँ C2H5OH, ये तो बन गया एज इट इज अल्कोहल। तो इसी रिएक्शन का जस्ट अपोजिट हुआ है ये, एंड दिस रिएक्शन बेसिकली ये जो बना है, दिस इज एक्चुअली द फॉर्मेशन ऑफ अ सोप, और इसीलिए क्योंकि इस रिएक्शन में सोप बन जाती है, तो हम इस रिएक्शन को बोलते हैं सैपोनिफिकेशन रिएक्शन। When an ester reacts with sodium hydroxide solution, the sodium salt of carboxylic acid, देखिए उन्होंने बोला
सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड द पेरेंट एल्कोहल। पेरेंट क्यों बोला? क्योंकि ये वही अल्कोहल था जिसने एस्टर बनाया था। एंड द पेरेंट एल्कोहल आर फॉर्म्ड। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड सैपोनिफिकेशन। नाउ द नेक्स्ट प्रॉपर्टी, अगर आप इथेनोइक एसिड के साथ NaOH मिला रहे हो, तो हमने अभी अभी डिस्कस किया था ना, हमने यहाँ तो एस्टर के साथ डिस्कस किया था, यहाँ सिर्फ इथेनोइक, तो Na इस H को रिप्लेस कर देगा और वाटर बाहर निकलेगा, तो सोडियम इथेनोएट बना यहाँ भी एंड वाटर। देखिए सोडियम एक मेटल है, मेटल पोर्शन, और यहाँ पे मेटल पोर्शन H है, तो सोडियम ने इस H को यहाँ से क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया, और ये H इस OH के साथ आ गया तो बना वाटर मॉलिक्यूल। रिएक्शंस को रटिए मत, रिएक्शंस को टेक्निकली याद करने की कोशिश कीजिए तो आप कभी नहीं भूलेंगे। Ethanoic acid react with carbonate. Whenever carbonate or hydrogen carbonate is there, then 101% carbon dioxide will liberate. At least आप इतना तो याद रखिए। So when ethanoic acid react with sodium carbonate, again sodium replace करेगा हाइड्रोजन को, sodium form sodium salt, sodium ethanoate, and water and carbon dioxide. The same happen in this reaction. ये reactions बहुत important हैं. And the next topic is soap and detergent. It is deleted from your course. Deleted portion, and thank you. Have a nice day. Goodbye.